Now we read second chapter of English. Name of the chapter is Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. तो ये लड़की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस कहानी के अंदर सुलेखा नाम की लड़की है जिसको भोली कहा गया क्योंकि वो नंबरदार की चौथी बेटी थी और उसको भोली इसलिए कहा गया कि वो एक बार खाट से या बेड से नीचे गिर पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी इसलिए वो एक मंद बुद्धि बालिका ही बनी रही. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. कि जब जन्म लिया उस बच्ची ने तो उस अवस्था में बहुत सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई तो उसमें स्मॉल पॉक्स नामक जो बीमारी थी चेचक की वो हो गई और उसका पूरा शरीर पे दाने दाने निकल गई और वो थोड़ा हकलाने भी लग गई. इस कारण वो बच्ची जो है एक पिछड़ी हुई बालिका बनी रही और वो अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाया करती थी. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in the schools and later in college. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegroom for them. तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां. तो सबसे छोटी भोली थी और ये एक संपन्न किसान थे और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी. भोली जो है वो सबसे कमज़ोर पिछड़ी हुई रही. अन्य जो इनके पुत्र थे उनको शहर भेजा गया विद्यालय पढ़ने के लिए, कॉलेज गए और बेटियों के अंदर भी सेटल हो चुकी. राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका विवाह हो चुका था और जो दूसरे नंबर की थी मंगला उसका भी विवाह हो चुका था और ये जो थी तीसरे नंबर वाली चंपा वो भी अभी अध्ययन कर रही थी और सबसे लास्ट वाली भोली जो है उसके लिए वर ढूंढना बड़ा मुश्किल था. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. And so you must set an example for the villagers. You must send your daughters to school. तो अब रामलाल जो थे वो चिंता कर रहे थे भोली के बारे में कि भोली को कैसे अध्ययन कराया जाए, कैसे इसका विवाह संपन्न कराया जाए. तो भोली जब 7 वर्ष की थी तो उस वक्त मंगला का विवाह हो चुका था और उसी दरमियान गांव के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत हो रही थी. जो तहसीलदार साहब थे वो उसकी उद्घाटन समारोह के अंदर आए और उन्होंने रामलाल से कहा कि भाई तुम भी एक इसी रेवेन्यू से राजस्व विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हो तो तुम्हें इसमें एक उदाहरण पेश करना चाहिए, अपनी बेटियों को विद्यालय में जोड़ना चाहिए. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो उसकी रात उसने रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि भाई लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए बात हो रही है. तो उसकी पत्नी चिल्लाई कि तुम पागल हो, लड़कियां विद्यालय जाएंगी तो कौन शादी करेगा उनसे. तो देखिए रामलाल ने कहा कि मैं इनका तहसीलदार साहब का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता. तो बोले ठीक ऐसा करो कि जो भोली है उसको विद्यालय भेज दो ताकि हमारा सरदर्द दूर हो और अध्यापक का सरदर्द हो जाएगी. द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए विद्यालय ले गई. तो भोली भी डरी हुई थी, वो नहीं जानती थी कि कहाँ ले जा रहे हैं, विद्यालय कैसा है. तो वो सोचने लगी कि जिस प्रकार उनकी गाय को घसीट कर ले जाया गया था उसी प्रकार उसे भी ले जाया जा रहा है. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर
and pulled her hand away from her father's grip. उसने अपना हाथ छुड़ा लिया पिता की पकड़ से. What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? तो उसने अपने बेटी को समझाया और अपनी पत्नी को कहा कि इसे अच्छे वेशभूषा पहनाओ ताकि मैं इसके स्कूल छोड़ के आऊँ. New clothes had been ever made for Bholi. The old dresses of her sister were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तो उस दिन भोली को नहलाया गया, तेल वगैरह उसके सर में लगाया गया, नई पोशाक पहनाई गई. तो वही सोचने लगी कि शायद उससे घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है. When they reached the school, the children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked up, shouted out with fear-laden eyes. There were several rooms, and each room girls like her squatted on mats, reading from books on writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. जब विद्यालय पहुंचे रामलाल अपनी बेटी को लेकर के तो देखा भोली ने कि यहाँ पे तो लड़कियां बैठी हैं क्लासरूम में, सब उसकी ओर देख रहे थे. और रामलाल ने जाती ही अध्यापिका जो एडमिनिस्ट्रेटर थी, प्रधान अध्यापिका थी, उसको सपुर्द किया उस भोली को. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. तो भोली ने वहाँ का दृश्य देखा और थोड़ी खुश हुई कि मेरी जैसी लड़कियां और भी बैठी हुई यहाँ पे, शायद उनसे मित्रता करे. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The lady teacher who was in the class was saying something to the girl, but Bholi could understand nothing. She looked at the picture on the wall. The color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो भोली ने जब कक्षा के अंदर देखा तो वहाँ तस्वीरें देखी जानवरों की, तो बहुत खुश हुई और अपने अध्यापिका से मिली. अध्यापिका उसकी ओर देख के मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. तो अध्यापिका ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो. तो हकलाने वाली लड़की थी ये, तो वो सही ढंग से बोल नहीं सकी. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in helpless blood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो शर्म के मारे वो रोने लग गई, अन्य बच्चियां हंसने लग गई. तो टीचर ने उसका उत्साह बढ़ाया. When the school bell rang, जब घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. भोली रो रही थी बैठी बैठी कोने में. भोली तो अध्यापिका ने पूछा, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग. तो अध्यापिका ने उसकी बड़े ही प्रेम पूर्वक पूछा. इन ऑल हर लाइफ शी हैड एवर नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. इट टच्ड हर हार्ट. तो अध्यापिका ने उसे इस प्रकार प्रेम से पूछा तो उसको भी बड़ी खुशी हुई कि आज तक उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी ने नहीं किया था. गेट अप सेड द टीचर. इट वॉज अ कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. तो उसे कहा कि उठो बेटा, इधर आओ. नाउ टेल मी योर नेम. कि अब मुझे अपना नाम बताओ. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of his kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो भोली जो है वो इस प्रकार से उसके प्रेम पूर्वक व्यवहार को देख करके खुश हुई. वापस उसने हकलाना शुरू किया. शी बिगन टू स्टैमर. हकलाने लगी. वेल डन वेल डन. तो टीचर ने उसको इंकरेज किया, उत्साह बढ़ाया. बोला शाबाश शाबाश. कम ऑन नाउ द फुल नेम. चलो बोलो बोलो बोलो. ऐसे भोबा करती हुई उसने भोली नाम बोला. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज ग्रेट अचीवमेंट. तो उसने अटकते हुए भी अपना पूरा नाम दोहराया. तो इस बात पे उसको भी बड़ी खुशी हुई. वेल डन, बहुत अच्छी. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. बोला तुम घबराओ मत, इसी प्रकार प्रयास करो तो आगे भी बोल सकती हो. भोली लुक्ड अप एट
to ask, really, वास्तव में? Yes, yes, it will be a very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. तो टीचर ने पूछा कि तुम रोजाना विद्यालय आओ तो तुम एकदम परफेक्ट बन जाओगी. Yes, yes, yes. Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. तो टीचर ने उसको एक पुस्तक दी और बोला कि रोजाना तुम विद्यालय आओ. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in his black letter. तो वो पुस्तक के अंदर अलग अलग जानवरों की तस्वीरें थी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, सबकी. तो लक्ष्मी इन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश हुई. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In one time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. Perhaps people will listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो टीचर ने कहा कि ये पुस्तक तुम पढ़ सकती हो बेटा आराम से, इसलिए पुस्तक घर ले जाओ और अपना बराबर अभ्यास करते रहो. तो भोली बहुत खुश हुई पुस्तक पा करके. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into the big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो भोली में एक नए उत्साह की किरण जागृत हुई. Thus the year passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. अब धीरे धीरे गांव में विकास हुआ. वो छोटा विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया. वहाँ पे सिनेमा आ गया और मिलें लग गई, ट्रेन का चलन शुरू हो गया. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept December's proposal?" Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. तो एक रात रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि दिसंबर का प्रपोजल आया, प्रस्ताव आया है भोली से विवाह करने का. तो भोली भी ऐसे वर को पा करके खुश हुई. A big shop, a house of his own, and I had here several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो रामलाल ने पत्नी से कहा कि भाई भोली के लिए एक वर है जो एक दुकानदार है, अच्छा कमाता है, तो उससे विवाह किया जाए. काफ़ी पैसा उसके पास है और ना ही वो कोई दहेज ले रहा. That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lives. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. लेकिन बोला एक कमी है कि वो मेरे जितनी अवस्था का है और थोड़ा लंगड़ा करके चलता है, और पहले की जो पत्नी थी उसका देहांत हो चुका है, बड़े बच्चे हैं उसके. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. पत्नी ने कहा कि तो क्या बात हो गई, 45 और 50 एक ही बात है. बोले 50-45 का हो, 50 का हो. इट्स नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन. बोले ज़्यादा कोई अवस्था नहीं है. वी आर लकी दैट इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. तो पत्नी ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो कुंवारी रह जाएगी, और पड़ोस के गांव का वो वर है तो उसे भी नहीं पता है कि हमारी बेटी किस प्रकार हकलाती है. उसमें भी कमी थी, दाने दाने थे शरीर पर. यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. तो सोचने का भोली को कैसा लगेगा. व्हाट विल दैट विटीलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ. तो पत्नी ने कहा कि वो तो एक गंवार है, गाय की तरह है, जो कुछ करेंगे हम करेंगे. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot listening to her parents' whispered conversation. तो भोली पास ही में सुन रही थी पूरी वार्तालाप. Vishwambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. तो वो दिन आया जब विशंबरनाथ जो एक ग्रोसर था, किराना की दुकान चलाने वाला था, तो वो बारात लेकर के आया. बड़ी ही धूमधाम से सब कुछ चल रहा था. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब पल आया तो पुजारी ने कहा कि उसके दुल्हन को लाया जाए. भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. भोली जो है वो लाल साड़ी पहनी हुई वहाँ आई. Garland the bride, one of his friend promoted विशंबरनाथ. तो विशंबरनाथ को उसके मित्र ने कहा कि माला पहनाइए. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishamba took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. जब
वक्त आया वरमाला पहनाने का, तो जो ही विशंबरनाथ ने जो पीले सूरजमुखी के फूलों की माला थी उसको डालना चाहा, तो उसने चेहरा देख लिया भोली का, पॉक मार्क्स दिख गए उसको, निशान दिख गए, तो एकदम रुक गया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो विशंबर ने तुरंत अपने मित्र से कहा, तूने देखा इस लड़की को? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, किसके चेहरे पे दाने दाने से। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो मित्र ने कहा कि तुम भी इतने जवान नहीं हो। मे बी, बट आई एम टू मैरी हर, फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। अब बदल गया विशंबरनाथ, बोला कि अब तो मैं इससे विवाह तभी करूँगा जब 5000 रुपये दे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, तो रामलाल जो अपना साफा उसके पाँव में रखा, हिज ऑनर एट विशंबर फीट, विशंबर के चरणों में। डू नॉट ह्यूमिलेट एट मी, सो टेक 2000 रुपीज़, बोला मुझे परेशान मत कीजिए, आप 5 के बजाय 2000 रुपये ले लीजिए। नॉट 5000 और वी गो बैक, तो अब वो 5000 रुपये अड़ गया और बोला अन्यथा वापस आते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखिए। बी ए लिटिल कॉन्सिडर प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, बोला अगर आप चले गए, बारात ले गए, तो मैं किसी को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा अपने गाँव में। नाउ देन आउट विथ 5000, तो जैसे तैसे उन्हें 5000 रुपये दिए। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, किन करके अंदर से लेकर के 5000 रुपये ला कर रख दिए। और विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिumphant स्माइल, विशंबर के चेहरे पर एक विजय की मुस्कुराहट थी। ही हैड ग्रम्बल्ड एंड वॉन गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, बोला मुझे वरमाला दीजिए, ठीक है मैं पहनाता हूँ। Once again the wheel was slipped back from the bright fair, but this time her eyes were not downcast. अब उसकी नजरें नीचे नहीं थी, सीधा देख रहा था। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब वो भोली ने भी देखा इस प्रकार का व्यवहार तो थोड़ी नाराज हुई। विशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, जो ही उसने गर्दन के पास लाया वो वरमाला। But before he could do, Bholi hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. तो भोली ने तुरंत एक्शन लिया, उसने उसकी वरमाला को दूसरी तरफ फेंक दिया और घूंघट हटाया। पिताजी, बोली सीधी स्पष्ट शब्दों में। भोली ने क्लियर लाउड वॉइस एंड फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर वर स्टार्टल टू हियर स्पीक। तो सभी जो सगे संबंधी, पिता, माता, बहनें, भाई, अन्य जो आस पड़ोस सब उसको इस प्रकार से बोलते हुए देख करके आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, बोली पिताजी आप पैसा ले लीजिए इसे। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं कर रही। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो रामलाल भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोले इतने, तो पड़ोसी लोग भी करने लगे कि इसको तो कोई शर्म नहीं है, इस प्रकार से बोल रही है। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल बोले बोली तुम पागल हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुमने परिवार का अनादर कर रही हो। हाउ सम दिस रिगार्ड फॉर योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत का ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेड कवर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। तो भोली ने स्पष्ट कहा, मैं इस लालची, इस वृद्ध लंगड़े व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। वाट इज शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। तो हम सब देखने लगे भोली तो एक गाय के समान थी, लेकिन हमें कहाँ से आ गया इतना कॉन्फिडेंस। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वोमेन, भोली तुरंत उस बूढ़ी महिला के पास गई। यस आंटी, यू आर राइट, आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सब सोचे हो मैं एक गूंगी बहरी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दी हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम मुझे इस निर्दयी व्यक्ति को सौंप रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब देखो ये भोली गाय, गूंगी गाय बोल रही है तुमसे। डू यू वांट टू हियर ए मोर, ज़्यादा और कुछ सुनना चाहते हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, विशंबरनाथ तुरंत अपनी सगे संबंधी वापस चला गया। द कंफ्यूज बैंड मैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टार्टिंग क्लोजिंग सॉन्ग। तो बैंड पार्टी जैसे वो भी समारोह की समाप्ति पर चल पड़ी। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड ए लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, रामलाल निर्लज की तरह वहाँ खड़ा रहा। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो आग जल रही थी फिर वो वाली वो भी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब जा चुके। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर गए, बोले व्हाट अबाउट यू, नो विल एवन मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, तो भोली जिसका सही नाम सुलेखा था उसने कहा कि डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्ध अवस्था में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी माता जी की आपकी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं इसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है।
Isn't that right, मैम? तो अध्यापिका के पास खड़ी थी, बोला मैडम बिल्कुल सही कहा मैंने. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. जो अध्यापिकाएं थी वो भी सब इस पूरे नाटक को देख रही थी. यस भोली ऑफ कोर्स, बोले हाँ भोली वास्तव में. शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मास्टरपीस. तो इस प्रकार के आत्मविश्वास को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए.